factorization is coming. Sir, can we do factorization today? Sir, can we do factorization today? किस लिए फैक्टराइजेशन? किसके लिए? फाइंड करने के लिए? The chapter factorization. हो, आप पूछ रहे कि टेस्ट में आएगा या नहीं आएगा ना? सर आ रहा है टेस्ट में इस बार हम लोगों के स्कूल में. ओके ओके, स्कूल में फैक्टराइजेशन आ रहे हैं. यहाँ हुआ नहीं क्या फैक्टराइजेशन? नो सर. No, sir. ओके, वो पहला करें क्या? अभी कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स लगभग कंप्लीट हो गया बेटा हमारा. ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स कंप्लीट हुआ. फैक्टराइजेशन कराओ आज? Yeah. Yes, Yes, sir. sir. ठीक. आइडेंटिटीज तक वीडियोस था ना आपके पास? आइडेंटिटीज का वीडियोस देख लिया? ओके बेटा, सो फैक्टराइजेशन चैप्टर करेंगे आज. ओके, फैक्टराइजेशन. ओके, देखिए. सो फर्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए फैक्टर? फैक्टर का मतलब क्या है? यूजुअली फैक्टर का मतलब आपको पता है ना, नंबर्स में. ठीक है, व्हेन यू टेक ए नंबर, you know how to find the factors of a number, right? मान लीजिए 12 एक नंबर है. what are the factors of these numbers? Sir, 4, 3, 6, 2. 1 2 2, 3 3, 4, इसके बाद 6 6, 12. all 12. these are factors. Factors. So with respect to numbers, what is the meaning of a factor? अगर कुछ definition जैसा बोलना है तो what is, can you tell a definition for the word factor in terms of numbers? So factor का इतना ही मतलब है, एक नंबर को कौन से नंबर से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आएगा, ऑल दोज आर फैक्टर्स. सही है कि नहीं? Yes, sir. If a number when divided by the other number gives remainder 0, then the second number is the factor of the first number. सही है कि नहीं? So similarly, Yes, sir. अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर लुकिंग एट द वर्ड फैक्टर. ठीक है, इन कंटेक्स्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. अब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फैक्टर्स इन द सेंस ऑफ नंबर्स. ओके, इस चैप्टर में फैक्टराइजेशन इज विथ रेस्पेक्ट टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का मतलब तो पता है आपको. व्हाट आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस? किसी को पता है एक्सप्रेशंस का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन? एनीबॉडी? Sir, expression consisting of numbers and the numericals and literals with the operations of addition, subtraction. सही है, मतलब ऐसा कुछ बोल सकते हैं. एक्सप्रेशन कंटेन्स variables and Variables constants, and right? constants. Variables and Yes. constants connected by operations. सही है कि नहीं? Yes, sir. अब फैक्टर का मतलब क्या है, देखिए मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं. when an algebraic expression when an algebraic expression can be written as the product
of two or more expressions, then each of these expressions is called a factor of the given expression. Okay, when an algebraic expression can be written as the product of two or more expressions, then each of these expressions is called the factor of the given expression. Okay. For example, मान लीजिए 3x into 4x minus 5y. What are the factors of this expression? ये expression है ना ये? So what are the factors? What are the factors of this expression? What are the factors of this expression? 3 is a factor, सही है? X is a factor, और 4x minus 5y is a factor, सही कि नहीं जो मैं बोल रहा हूँ? Yes, sir. और भी कुछ फैक्टर्स है या सिर्फ यही फैक्टर्स है? So 1. Okay, 1 is also a factor. Okay, और कुछ? Send the whole number. हाँ? Send the whole. हो गया या और भी है? और भी है या कंप्लीट हो गया? हम्म? Sir, वो पूरा वाला. ठीक है, और भी है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो और भी है. फॉर एग्जाम्पल 3x is also a factor. 3 into 4x minus 5y is also a factor. X into 4x minus 5y is also a factor. 3x into 4x minus 5y is also a factor. All these are factors. समझ में आ रहे? क्लियर है क्या नहीं? क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से when an algebraic expression can be written as the product of two or more expressions, each of these expressions is called a factor. So हम 3 into ये लिख सकते हैं ना? This expression can be written as 3 into x times 4x minus 5y. So 3 भी factor होगा, x into 4x minus 5y भी factor होगा. All these are factors. Clear है क्या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. But factors में भी कुछ specifications होता है. आपको linear expressions का मतलब पता है? You know what linear expressions are? Yes, sir. Linear equations chapter किया है ना आप? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बोलिए linear expression का मतलब क्या है? An expression in which the highest power is 1. हाँ सही है, highest power 1 है. So now we can categorize the expressions, the factors. Linear expression के बाद क्या आता है? अगर highest power 1 है तो उसको linear बोलते हैं. highest power 2 है तो आया है क्या ये कॉन्सेप्ट? हाईएस्ट पावर 1 है तो उसको हम लीनियर बोलते हैं. अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो उसको हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं. नया वर्ड है, देखिए. लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब है क्या है? हाईएस्ट पावर, बोलिए. हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू 1. Highest power 1. क्वाड्रेटिक का मतलब है हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू 2. समझ में आ रहे? 2. Yes, sir. और भी है. क्यूबिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? Highest power 3. 3. Highest power is 3. बहुत अच्छा है. हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू 3. और सर highest power 4 का बाई क्वाड्रेटिक. हाँ बा, वेरी गुड, बहुत अच्छा है. बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या है?
हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू 4. Sir, समझ you रहे? told us this all. ओके, कब बोला Yes, बेटा? sir. Sir, linear equation वाला chapter में आपने बताया था. ठीक है, अच्छा है। Yes, sir. वीडियोस देखे इसका मतलब, गुड। अब देखिए, अगर हाईएस्ट पावर 0 है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू 0 है तो उसको हम कांस्टेंट एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्योंकि अब ध्यान से देखिए, 3 का, ये 3 कौन सा एक्सप्रेशन है? इज दिस ए लीनियर एक्सप्रेशन और नॉट? 3 इज 3 ए लीनियर एक्सप्रेशन? नो, 3 इज ए कांस्टेंट, है ना? Yes, sir. तो 3 को 3 into x power 0 लिख सकता हूं मैं? x power 0 का मतलब Yes, कितना sir. है? x power 0 का मतलब 1 है ना? 1. 3 को 3 into 1 तो लिख सकता हूँ। Yes, sir. इसका मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है 3 के साथ? 0. सो 3 इज कॉल्ड ए कांस्टेंट। समझ रहे? Yes, तो sir. ये क्या है? दिस इज ए कांस्टेंट फैक्टर। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. x is a which factor? लीनियर फैक्टर। Linear. क्योंकि x का मतलब x पावर 1 है ना? Yes, sir. ये कौन सा फैक्टर है? 4x minus 5 है। ये भी लीनियर फैक्टर है, बट लीनियर फैक्टर इन 2 वेरिएबल्स। इसमें x भी है, y भी है। Yes. आपको जो चैप्टर है वो लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल, ध्यान दे दीजिए। Yes, sir. आपको 9th में लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स आने वाला है, ये वाला। समझ रहे? तो दिस इज Yes. आल्सो लीनियर फैक्टर इन 2 वेरिएबल्स। 1 क्या है? Sir, constant. सो लीनियर फैक्टर CF बोलता हूँ, कांस्टेंट फैक्टर CF, कांस्टेंट फैक्टर। 3x इज Linear equation. लीनियर फैक्टर। दिस इज Linear equation in 2 इज variables. आल्सो लीनियर फैक्टर, बट ये क्या है? दिस इज Sir, quadratic equation. ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, क्योंकि Yes. x into 4x किया तो 4x स्क्वायर माइनस 5xy क्वाड्रेटिक। ये क्या है? Sir, cubic. नहीं नहीं, ये भी क्वाड्रेटिक फैक्टर है। देखिए, Quadratic. मल्टीप्लाई करके देखिए, हाईएस्ट पावर Yes, 2 ही आ sir. रहे हैं। समझ रहे? Yes, sir. So an algebraic expression can have a lot of factors. ये समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. An algebraic expression can have a lot of factors. Clear है? Yes, sir. So यहाँ तक नोट कर लीजिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए, हम आगे जाएंगे। Sir, done. Sir, done. Done, sir. नोट किया? Yes, sir. Yes, sir. गुड। Yes, sir. गुड। So next देखिए, so let us look at what the meaning of factorization is. Factorization का मतलब है the process of finding 2 or more expressions whose product is the given expression is called factorization. Is called factorization. For example, 12x square minus 15xy है. This is an expression. Factorization का मतलब है
if you can write this expression as a product of two or more expressions, such process is called factorization. इसको आप देख सकते हैं 12x स्क्वायर और 15xy में आप 3x कॉमन ले सकते हैं. Yes, sir. Yes, sir. 12x Yes, स्क्वायर में 3x कॉमन लिया तो आपको 4x बचेगा. Yes, sir. Yes. 15xy में 3x कॉमन लिया तो 5y will be left 5y. out. Yes, sir. What have you done actually? I have written this expression as a product of two or more expressions. So this process is called what? Factorization. Factorization. समझ में आ रहे? For example, x minus 3 into x minus 2 क्या है? What is x minus 3 into x minus 2? x square multiply करना आता है आपको? Yes, sir. Minus 2x minus 3x 3x. plus 6 Plus minus 3 6. into minus 2. That is x square minus 5x plus 6. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? This is the reverse of factorization. This is called multiplication. हम क्या किया? दो अलग अलग फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई किया. ठीक है? The two different factors are multiplied to get a single expression. इसको हम multiplication बोलते हैं. Factorization is the opposite process of multiplication. सही क्या नहीं? Yes, sir. Yes, Fact- sir. Factorization is the reverse process of multiplication. Clear है क्या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. कौन सा प्रोसेस इजी है? मल्टीप्लाई करना इजी है क्या फैक्टराइज करना इजी है? Sir, factorize. multiply. मल्टीप्लाई करना इजी है बेटा. Sir, multiply. ध्यान दे दीजिए. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 19 ये एक्सप्रेशन देता हूँ. मैं बोलते हैं इसको फैक्टराइज करो. क्वेश्चन है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 19 को मल्टीप्लाई करो. ये वाला दूसरा क्वेश्चन है. सबसे पहला ये सॉल्व करना चाहते हैं कि ये सॉल्व करना चाहते हैं आप लोग? फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, विच वन वुड यू लाइक टू सॉल्व? Sir, second question. Second one. बिकॉज इट इज Sir, इजी, राइट? second question. ये इजी है ना, मल्टीप्लाई करना Yes. डायरेक्टली हो जाएगा. मल्टीप्लाई किया तो क्या है? Yes, एक्स sir. स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 19x माइनस 20x प्लस 19 आ गया. देखिए, बट यही एक्सप्रेशन को उल्टा प्रोसेस करना थोड़ा सा टाइम लगेगा. आपको समझना है कैसे करना है. दैट्स Sir, व्हाई middle term factor. हाँ So ये middle term factor से factorize करना है. हाँ हाँ वही हम सीखने वाला है. सो हमारा चैप्टर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट आवर चैप्टर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए चैप्टर का जरूरत नहीं है. यू नो हाउ टू मल्टीप्लाई थिंग्स, बट फैक्टराइजेशन के लिए यू शुड नो द स्टैंडर्ड प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजेशन. ठीक है? सो इस चैप्टर में हम क्या देखने वाला है? अलग अलग टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस को कैसे फैक्टराइज करना है. क्लियर? Yes, sir. तो हम अभी प्रोसेस देखेंगे. ठीक है? फर्स्ट प्रोसेस यहाँ तक नोट कर लीजिए. We'll look Yes, into the sir, first done. process of factorization. Sir, done. Sir, done. Okay, good. So the first type is factorization. Factorization when a common monomial factor occurs in each term. ये फर्स्ट मॉडल है. फॉर एग्जाम्पल 5x प्लस 20 को फैक्टराइज करना है. 2n स्क्वायर प्लस 3n को फैक्टराइज करना है. सबसे सिंपल वाला है. 3x स्क्वायर y प्लस 3y x स्क्वायर को फैक्टराइज करना है. 6ab माइनस 9bc को फैक्टराइज करना है. Yes, sir. मान लीजिए इसको फैक्टराइज करना है ये चीजों को. ये बहुत सिंपल एक्सप्रेशन है.
So how many terms does this expression has? Two दो terms. terms है ना, Two terms. इसमें भी Yes. two Two terms है, terms. two Yes. terms, Two two terms. terms. Two terms. So now, is there any common factor among all the terms of this expression? 5x or 20 में? Sir, five. Sir, five. 5 common है, so x plus Plus 4. 4 factorize हो गया, ठीक है? This is the process of factorization. ये दोनों में is there something common? N. Sir, N. N. So 2n plus 3 factorize हो गया. ये दोनों में is there something common? 3xy. XY. Sir, 3xy. excuse me, sir. You have given 3xy. square. Sir, you have given square in x 2 times. So that you have given 3x square y plus 3y x square. उसमें दिक्कत है कुछ? Sir, y square it will be x. No, sir. Then when we will take common, then it will be 3x square y. ओके मैं गलत किया था ना, y स्क्वायर x होना चाहिए ना. Yes, sir. 3x स्क्वायर y प्लस 3y स्क्वायर x. सो 3xy कॉमन लिया तो फर्स्ट टर्म x बचेगा, सेकंड टर्म में Y. y बचेगा. एंड 9ab माइनस 6ab 3b. माइनस 9. 3b. सो 3b कॉमन ले सकता हूँ, सो 2a माइनस 3c. 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 क्लियर. Yes, Yes. sir. So this is the first type of factorization. Factorization when a common monomial factor occurs in each term. समझ रहे? Yes, sir. नोट कर लीजिए. Sir, done. Sir, done. Sir, done. क्लियर है? Yes, sir. Next, second is factorization when a binomial is common. कभी कभी एक बाइनोमियल कॉमन आ सकता है. बाइनोमियल का मतलब है एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म्स. फॉर एग्जांपल 5a into 2x minus 3y plus 2b times 2x minus 3y. 8 times 4x plus 5y का होल स्क्वायर minus 12 times 4x plus 5y. सर आपका आवाज कट जा रहा है. क्या है? सर आपका आवाज कट रहा है. हाँ देखिए. So ये दोनों terms में there are two terms. Is there something which is common in these two terms? 2x 2x minus minus 3y. So 2x minus 3y is common in these two terms. So 2x minus 3y बाहर किया तो यहाँ क्या बचेगा? 5a plus 2b. Plus 2b. समझ में आ रहे? Yes, sir. So here को फर्स्ट एंड सेकंड में डिफरेंस है. बाइनोमियल इज कॉमन. बाइनोमियल का मतलब you have an expression containing two terms as common. Yes, sir. समझ रहे? इसलिए बाइनोमियल इज कॉमन बोल रहे हैं. नेक्स्ट, यहाँ क्या क्या कॉमन है? 8 4x and plus 12. 5. 8 and 12 में 4 4x कॉमन, plus Sir, 5. 4x plus 5y. राइट? 8 and Yes. 12 में 4 कॉमन है, 4x plus 5 है, दोनों में है. सो ब्रैकेट में क्या आएगा? यहाँ 2 बचेगा. 8 में 4 कॉमन लिया तो 2 बचेगा. 4x plus Plus 5y. 5y minus 3. या 4x plus 5 एक कॉमन तो ले लिया, यहाँ से 4 लिया, सो माइनस 3. 3. क्लियर है? Yes, sir. नोट कर लीजिए. Sir, done. So wait. Sir, done. गुड. Sir, done. So wait please. वेट. ओके, नोट कर लीजिए.
Yes, sir. Not on. हो गया? Okay. Next is factorization by grouping. कभी कभी कुछ expressions को आप factorize कर सकते हैं just by grouping properly. For example, a square plus bc plus ab plus ac, ax square plus by square plus bx square plus ay square, 1 plus a plus ac plus a square c, xy minus pq plus qy minus px. ओके, सो ये एक्सप्रेशंस है, उसको फैक्टराइज करने के लिए कोशिश करेंगे. अब ध्यान दे दीजिए, इस एक्सप्रेशन में 4 टर्म्स है. नाउ आई एम गोइंग टू ग्रुप a square and ab as one group, bc and ac as the other group. ओके, सो ऐसा ग्रुपिंग करने से फायदा क्या है वो बाद में पता चलेगा. मैं क्या करता हूं, a square plus ab, ये दोनों को ग्रुपिंग किया, प्लस bc प्लस ac ग्रुपिंग किया सेपरेटली. अब a square plus ab में is there something which is common? a कॉमन ले सकते हैं, A. Yes, a sir. plus b. bc and ac में कुछ कॉमन है, C. C c कॉमन लिया तो b plus a, plus right? A. Yes, But sir. a plus b and b plus a तो Yes, same sir. है. Yes, sir. So in these two, a plus b is common, so a plus c. C. समझ रहे? Yes, sir. So कौन से टर्म्स को ग्रुपिंग करना है, कौन से टर्म्स को ग्रुपिंग नहीं करना है, वो कैसे पता चलेगा? वो आपका स्किल है बेटा, वो कोई नहीं बोलता है, ठीक है. नो वन टेल्स यू विच टर्म्स टू ग्रुप. वो आप खुद से अलग अलग ग्रुपिंग्स करके देखते रहना है. अगर फर्स्ट टाइम नहीं आया, कुछ और ग्रुपिंग करके देखो, कुछ और ग्रुपिंग करके देखना है. हिट एंड ट्रायल प्रोसेस. क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट, इसमें मैं ये दोनों को ग्रुपिंग करता हूँ, ये दोनों को ग्रुपिंग करता हूँ. सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर एक जगह लिखता हूँ, बी वाई स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर एक जगह लिखता हूँ. सो ये दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन किया तो ए प्लस बी, ये दोनों में वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो a plus b. So that is equal to a plus b times x square plus y square. समझ में आ रहे? Yes, sir. Yes, sir. Good. अब यहाँ भी ये दोनों को ग्रुपिंग कर रहा हूँ, ये दोनों को ग्रुपिंग कर रहा हूँ. 1 प्लस ए सी प्लस ये दोनों में a कॉमन लिया तो 1 प्लस ए सी हो रहा है. क्लियर है ये? 1 प्लस ए सी प्लस इन दीज टू a कॉमन लिया तो अगेन 1 प्लस ए सी. सो अगेन 1 प्लस ए सी कॉमन लिया तो बचा क्या है? 1 plus A. So this is 1 into 1 plus AC है ना? 1 plus AC का Sir. मतलब 1 into 1 plus AC. 1 plus AC कॉमन लिया तो 1 बचेगा प्लस A. Yes, A. क्लियर है? Yes, sir. इसमें X. Y. ये दोनों को ग्रुपिंग करो, Sir. ये दोनों को ग्रुपिंग करो. XY plus QY माइनस PQ माइनस PX. ये दोनों में Y कॉमन लिया तो X प्लस Q. ये दोनों में माइनस P कॉमन लिया तो माइनस P कॉमन लिया तो Q Q plus X. Q plus X. X. सो Q प्लस X और X प्लस Q इज सेम. ये दोनों Yes. कॉमन लिया तो आपको y माइनस P. क्लियर है क्या नहीं? Yes, sir. So these are examples of expressions which can be factorized by what? By grouping. समझ आ रहे? Grouping. So नोट कर लीजिए. Sir, done. Sir, done. Sir, done.
Done. ओके गुड। और कोई है बेटा नोट करने वाला? नेक्स्ट फोर्थ type, factorization when a given expression, when the given expression is the difference of two squares. Factorization when the given expression is the difference of two squares. आपको पता है a square minus b square का फॉर्मूला a plus b into a minus b, right? Yes, sir. तो अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर जैसा है तो उसको आप समथिंग प्लस समथिंग इंटू समथिंग माइनस समथिंग लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 49x square minus 16y square, 64 minus x square, y square minus 121, 48a square minus 243b square, x cube minus 25x, 3x cube minus 48x, ये सबको फैक्टराइज करना है। फर्स्ट वाला इजी है। Yes, sir. This is Yes, nothing but sir. 7x का होल स्क्वायर माइनस 4y का होल स्क्वायर है ना। Yes, sir. Yes, sir. So इसको क्या लिख सकते हैं? That is equal to 7x plus 4y 7x minus 4y. हो गया। इसको आप 8 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना। 64 इज Yes, नथिंग sir. बट 8 स्क्वायर। तो इसको मैं 8 प्लस एक्स इंटू 8 minus 6. माइनस एक्स बोल सकता हूँ। दिस इज y स्क्वायर माइनस 121 इज नथिंग बट 11 स्क्वायर। 11 square. So y plus 11 इंटू y माइनस 11। क्लियर है? Yes, sir. ये देखिए यहाँ हम क्या करेंगे पहला, दिस इज नॉट डायरेक्टली ऑफ द फॉर्म समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर। यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर दिख रहे हैं बट दीज आर नॉट स्क्वायर्स। इसे फैक्टराइज करना पड़ेगा। हाँ इसमें 243 और 48 में कुछ कॉमन आएगा। Sir, 3. 3 कॉमन है ना। 3. सो 3 Yes, sir. टाइम्स 16a स्क्वायर माइनस 81b स्क्वायर लिख सकता हूँ। Yes, sir. So now this can be written as 3 times 4a का whole square minus 9b का whole square. That is equal to 3 times 4a plus 9b into 4a minus 9b. सही है क्या नहीं? Yes, sir. इसको आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। x एक पहला कॉमन ले लेता हूँ, x स्क्वायर माइनस 25। 25. So x into x square minus 25 को x plus 5 X into square. x minus X 5 लिख minus सकते हैं। 5. यहाँ क्या कर सकते हैं? दोनों में 3x कॉमन ले सकते हैं। 3x. Yes, sir. x square minus 16, right? So that is equal to 3x into x plus 4 into x minus X 4. minus 4. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. आगे जा सकता हूँ? Yes, sir. Sir, Sir, please. please wait. आप नोट कर लीजिए। Sir, done. Sir, done. Okay. Done. Not done.
Next. Fifth, factorization when given expression is a perfect square. Factorization when the given expression is a perfect square. आपको formulas पता है ना? A square plus 2ab plus b square क्या होते हैं? A square plus b, a plus b whole square. A plus b whole square. Right? And a square minus 2ab plus b square क्या होते हैं? A minus B A whole minus b square. whole square. a minus b का whole square. सही है क्या? Yes, Yes, sir. sir. So for example, x square plus 8x plus 16 है, तो factorize करना है. p square minus 10p plus 25. 121a square minus 88ab plus 16b square. Z square plus z plus 1 by 4. A square b square minus 6abc plus 9c square. So all these are examples of expressions which are perfect squares. इसको देखिए, x square दिख रहे हैं? Yes, sir. लास्ट में 16 is nothing but 4 square. 4 square. Yes, sir. बीच में 8x को 2 into x 2 into 4 into लिख x सकते हैं ना? into 4. Yes, sir. So these are the form a square plus 2ab plus b square. इसको आप क्या लिख सकते हैं? x plus X plus 4 whole square. factorize हो गया. Yes. Similarly, this is p square, 25 is 5 square. बीच में एक्चुअली नेगेटिव है. 10p को 2 into p into 5 लिख सकते हैं? Yes, sir. So this is nothing but what? P, p minus 5 का whole square. whole square. 121a square is 11a का whole square, right? (16b square is 4b का whole square. Yes. बीच में माइनस है. 88ab को मैं 2 into 11a into 4b लिख सकता हूँ? Yes, sir. ये तो 2 into 11 22 into 4 88 ab हो गया ना? So which Yes, is sir. equal to what? 11a Then a minus minus 4b 4b का whole square. ये देखिए, z square, ये 1 by 4 को आप क्या लिख सकते हैं? 1 by 2 का whole square. 1 by 4 can be written as 1 by 2 whole square, right? अब ये z को क्या लिख सकते हैं? Sir, Z1. Z can be written as 2 into z into 1 by 2. Yes, sir. ठीक है, 2ab फॉर्म में लिखना है बीच में. a square plus 2ab plus b square. So z plus half का whole square. Easy? Yes, sir. A square b square is sir. ab whole square, right? 9c square is 3c whole square. बीच में ये 6abc को 2 into ab into 3c लिख सकता हूँ? Yes, sir. a square plus 2ab plus b square जैसे दिख रहे हैं? So क्या होगा? ab minus 3c का whole square. समझ आ रहे? Yes, sir. So this is factorization when the given expression is in the form of a
perfect square. आगे जाएंगे? Yes, sir. नोट Yes, किया? sir. Yes, sir. नोट किया? Yes, सब लोग- sir. Yes, sir. सब लोग नोट कर रहे हैं ना? Yes, sir. लास्ट 6th, ये आपका चैप्टर का लास्ट फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन of quadratic trinomials. Someone has said middle term factorization starting में. Yes, sir. So this is regarding that. So factorization of quadratic trinomials. For example, ध्यान दे दीजिए, x plus a into x plus b, मान लीजिए दो लीनियर पॉलिनोमियल्स, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा बोलिए? x स्क्वायर Square. प्लस ax प्लस bx प्लस ab, AB. सही है? That is Yes. equal to x square plus a plus b into x plus ab, सही है क्या नहीं? Yes, sir. इसका मतलब है x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी को आप कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं? x प्लस a इंटू एक्स प्लस b, समझ आ रहे? Yes. एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी को आप कैसे लिख सकते हैं? x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, समझ आ रहे? Yes, sir. Sir. इसका मतलब है, देखिए इसका मतलब ये है, Yes, sir. Yes. इफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, मान लीजिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है. ट्राइनोमियल का मतलब क्या है? 3 टर्म्स. ओके, Yes, sir. Yes, sir. इसको आप x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी जैसा फैक्टराइज करना है, तो इफ दिस इज फैक्टराइजेबल इनटू दिस, देन p का वैल्यू क्या होना चाहिए? A plus B. a प्लस बी जैसा होना चाहिए. Yes, और sir. q क्या होना चाहिए? AB. AB. सही है क्या नहीं? Yes, sir. कोई भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, अगर कोई भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, if it is factorizable as x plus a into x plus b, then ये p का मतलब x का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? सम ऑफ a एंड b, एंड कांस्टेंट टर्म क्या होना चाहिए? वही दो नंबर्स का प्रोडक्ट जैसा होना चाहिए, समझ में आ रहा है? इसका मतलब देखिए, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 को फैक्टराइज करना है. आपका काम ये होगा, यू हैव टू फाइंड टू नंबर्स a एंड b सच दैट दोनों का सम क्या होना चाहिए? 8 आना चाहिए. 8. प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 15. ये दोनों का सम a प्लस बी 8 आना चाहिए. वो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 15 आना चाहिए. ऐसा दो नंबर्स आप खुद से फाइंड करना पड़ेगा. easiest way is to go start from this. Yes, sir. ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, 15 Yes, को sir. दो नंबर्स का प्रोडक्ट जैसा कितना तरीके से लिख सकते हैं? Sir, 3 into Sir, 5. 3 into 5. Sir, 3 into 5. आप 1 into 15 लिख सकते हैं या 3 into 5, दोनों में कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा. Yes, sir. Yes, sir. अगर 1 into 15 लिखा तो 1 plus 15 कितना होगा? 16. 16 होगा, बट 8 नहीं होगा ना. Yes, sir. ऐसा दो Yes, नंबर्स sir. लिखना है. ऐसा दो नंबर्स चाहिए such that the product is 15 and sum is 8. 8. अब अगर मान लीजिए 3 and 5 लेते हैं, ये दोनों का सम कितना है? 8. 8. सो सम 8 भी मैच हो रहा है और Yes. प्रोडक्ट 15 भी मैच हो रहा है. 15. So
what you need to do is you have to find these two numbers 3 and 5 तो find कर लिया. Yes, sir. अब process क्या करना है देखिए. The process is called middle term splitting. The process is called what? Middle term splitting. समझ रहे? So आप क्या करिएगा 8x has to be divided into 3x plus 5x. two terms which are 3x plus 5x. This 8 has to be split into two numbers 3 and 5. So 8x has become 3x and 5x. Okay, plus 15. अब सिंपली क्या किया, एक्स स्क्वायर वैसे छोड़ दिया, 15 भी वैसे छोड़ दिया, बीच वाले 8x को you have split it into two terms 3x plus 5x. So that is equal to x times x plus 3. सही है कि नहीं? Yes, sir. Plus 5 times X plus. plus 3. That is equal to x plus 3 common ले लीजिए, x plus 5. That is the factorization. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान दे दीजिए, अगर लास्ट टर्म पॉजिटिव है तो स्प्लिटिंग का दोनों नंबर्स पॉजिटिव होगा और दोनों नंबर्स नेगेटिव होगा. समझ रहे? क्योंकि दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है तो इधर दोनों पॉजिटिव होना चाहिए या दोनों नेगेटिव होना चाहिए. ठीक है, अपने आप को म्यूट रखिए बेटा, अनलेस यू वांट टू आंसर समथिंग. अगर कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव का मतलब क्या है, एक नंबर पॉजिटिव होगा एक नंबर नेगेटिव होगा. Negative. क्लियर है? Yes, sir. Yes. सो ये समझ में आया फर्स्ट वन. Yes, sir. Yes, sir. तो सेकंड एग्जांपल, x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56. ओके, सो अब मैं क्या करता हूँ, इसको फैक्टराइज करने के लिए 56 से स्टार्ट करता हूँ. 56 कैन बी रिटन एज 1 into 56. So 7 into 8. हाँ, मैं So पहला 7 क्या into करता हूँ, 8. हाँ मैं So पहला क्या 7 करता into हूँ, 8. सारा लिख के देख लेता हूँ. ठीक है, स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा ऐसा करके देखता हूँ such that you understand what is happening. 56 को 3 से नहीं कर सकता हूँ, 4 into 14 कर सकता हूँ, 8 into 7 कर सकता हूँ. So these are the 4 ways in which 56 can be split. अब इसमें कौन सा चूज करेंगे? Sir, 8 into 7. Into 7. 56 ऐसा दो नंबर्स लिखना है सच दैट a प्लस बी 56, a इंटू बी 56 होना चाहिए और a प्लस बी कितना होना चाहिए? 15. से दोनों को ऐड किया तो 57 आ रहा है, ये दोनों को ऐड किया तो 30 आ रहा है, दोनों को ऐड किया तो 18 आ रहा है, ये 18. दोनों को ऐड किया तो 15 आ रहा है. 15. So this is the required splitting. So कैसे स्प्लिट करेंगे 15 को 8 and 7. So 15x को 8x plus 7x plus 56. समझ रहे? Yes, sir. तो ये दोनों Yes, में x sir. कॉमन लिया तो x plus 8, दोनों में 7 कॉमन लिया तो x plus 8. That is equal to x plus 8 कॉमन लिया तो x plus 7. क्लियर है क्या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर हम्म, अगर मैंने 7x पहले लिया फिर 8x लिया तो ठीक होगा? हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8x भी लिख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनल आंसर सेम आएगा. अब देखिए क्या आएगा, दोनों में x इंटू Okay, एक्स प्लस 7, ये दोनों में 8 इंटू एक्स प्लस 7, इसके बाद x प्लस 7 कॉमन आएगा, बचेगा x प्लस 8. यहाँ क्या है, x प्लस 8 कॉमन आके x प्लस 7 बच गया, यहाँ x प्लस 7 कॉमन आके x प्लस 8 बचेगा, सेम आंसर आएगा. ओके सर. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Sir. यस Yes, सर. sir. अब ध्यान दे दीजिए, देयर इज ए डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन वेयर अभी तक जो हम देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर इज 1 इंटू एक्स स्क्वायर. प्रीवियस एग्जाम्पल भी एक्स स्क्वायर का मतलब
1 into x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, समझ रहे? कभी कभी क्या होता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 17x माइनस 3। इस बार क्या करना है, देखिए अगर x स्क्वायर के साथ भी कुछ नंबर है तो ये दोनों नंबर्स को एक ग्रुप मानना पड़ेगा, ये नंबर को अलग मानना पड़ेगा। सो द प्रोडक्ट शुड बी व्हाट? द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू। एक्चुअली प्रोडक्ट 56 मान रहे हैं ना हम, एक्चुअली 56 नहीं है, 56 into 1 है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है ना, सो 1 से 56 मल्टीप्लाई किया तो 56 प्रोडक्ट होना चाहिए। इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट हैज टू बी हाउ मच? 18 होगा सर। -18 है, ध्यान दे दीजिए, Yes, sir. -18। एंड सम कितना होना चाहिए? -17. -17। ओके, सो फर्स्ट प्रोडक्ट -18 है ना, Yes, sir. दो नंबर का प्रोडक्ट -18 का मतलब क्या है? एक नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, एक नंबर नेगेटिव होना Negative. चाहिए। तो 18 को आप ध्यान दे दीजिए, 1 into 18 लिख सकते हैं, 2 into 9 लिख सकते हैं, 3 into 6 लिख सकते हैं, राइट? दीज आर द 3 ऑप्शंस। बट आपको -18 चाहिए। -18 का मतलब -1 into 18 हो सकता है और 1 into -18 हो सकता है, -2 into 9 हो सकते हैं और 2 into -9 हो सकता है, -3 into 6 और 3 into -6. these are the 6 options that you have। अब ये दोनों को सम करिए, कितना आ रहा है? 17. ये दोनों को सम करिए, -17. ये दोनों को सम करिए, 7, ये 7. दोनों का सम -7, ये दोनों का सम 3. 3, ये दोनों का सम। -3। आपको सम कितना चाहिए? -17. -7। सो कौन सा चूज करेंगे? ये वाला चूज 1 करेंगे। into 1 into -18. -18। इसका मतलब -17 is split into 1 and -18। सो स्प्लिटिंग कैसे होगा? -17 को आप +x -18x, समझ रहे? +1 -18 -3, ऐसे स्प्लिट करना है, क्लियर है? तो ये दोनों में x कॉमन लिया तो 6x + 1, ये दोनों में -3 कॉमन लिया तो 6x + 1, 6x + 1 into X x minus -3. समझ रहे? Yes, sir. So when the coefficient of x square is not equal to 1, क्या करना है? इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। That should be the product, the middle one should be the sum। समझ रहे? सर एक बार उल्टा करके दिखाइए ना क्या है, कैसे? सर। 18 को उस तरफ और x को इस तरफ। 18x को। Okay, okay। So 6x square -18x plus x -3, okay? ये दोनों में क्या कॉमन आएगा? 6x कॉमन आएगा, Sir. Yes, sir. x -3, okay? ये दोनों में 1 कॉमन लिया तो x -3, राइट? Yes, sir. So x -3 कॉमन लिया तो 6x plus 1, okay? Yes, sir. सो स्प्लिटिंग जैसा भी करिए सेम आंसर आएगा, उल्टा करिए, फॉरवर्ड करिए, बैकवर्ड करिए, क्लियर है? Yes, sir. सो दिस इज अबाउट योर चैप्टर ऑफ फैक्टराइजेशन। आपका 6 मॉडल्स है पूरा। अब आपका काम है घर में प्रैक्टिस करना है, ठीक है? प्रैक्टिस करके, ठीक है, डाउट्स है तो अगला क्लास में पूछ लीजिए, ओके और नॉट? Yes, sir. Okay, sir. गुड नाइट बेटा। ओके सर, गुड नाइट सर, बाय Sir, सर, thank you, sir. Bye, sir. थैंक यू बेटा, थैंक यू, Thank you, गुड sir. नाइट।